آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر گاؤں گاؤں میں ہو ویسے اقبال۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پشاور پولیس لائنز دھماکے میں شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ تنگی میں 4 پولیس اہلکار نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ منو میں 3، ثوابی میں 2 پولیس اہلکاروں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کر دی گئی۔ پشاور پولیس لائنز میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی، قیمتی جانی نقصان پر صوبے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ دھماکے میں شہید ہونے والوں کی آبائی علاقوں میں نماز جنازہ کے بعد تدفین۔ چارسدہ کی تحصیل تنگی امیر آباد میں شہداء کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ڈی ایس پی تنگی تاج محمد خٹک سمیت علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات، شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہداء کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ثوابی کے علاقے شیوا میں شہید اہلکار محمد نعیم کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ شہید نعیم نے سوگوران میں بیوہ اور ایک بیٹا چھوڑا ہے۔ دھماکے میں جاں بحق پیر جمال کی نماز جنازہ کا بگنی میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں نے شرکت کی۔ کانسٹیبل پیر جمال جدون نے آج ملازمت سے ریٹائر ہونا تھا۔ کوہاٹ تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والے مزید 31 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ڈیم میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ دیگر کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے اپنے نمائندے عابد حسین سے۔ عابد، بتائیے گا کشتی میں کل کتنے افراد سوار تھے اور کتنے افراد کو زندہ بچایا گیا ہے؟ مزید کتنے افراد کے ابھی ڈوبنے کا خدشہ ہے؟ مزید جی، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ جو کوہاٹ تالہ ڈیم کا واقعہ پیش آیا ہے، اس میں ٹوٹل جو طلبہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 57 جو ہے وہ ڈرون ہوئے تھے اس میں، اور اس میں جو ہے 5 افراد کو جو ہے 5 بچوں کو زندہ نکال لیا گیا تھا، جبکہ جو 52 افراد ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاع اب تک ریسکیو ذرائع سے اور تمام جتنے بھی مقامی ذرائع ہیں اور جتنے بھی ہاسپٹل کے ذرائع ہیں ان سے معلوم ہوا ہے۔ لہٰذا جو ہے ابھی آپریشن جو ہے وہ روشنی کم ہونے کے باعث روک دیا گیا ہے، اور تاندہ ڈیم میں جو کارروائی جاری ہے اس میں ضلعی انتظامیہ، پاک فوج کے ادارے، ریسکیو کے تینوں جو ہماری تحصیلیں ہیں ان کے سارے ورکر حصہ لے رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دادو کے علاقے سمشاق میں 2 گروہوں میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں فائرنگ سے بہن بھائی قتل جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ جھگڑا زمین کے تنازع پر ہوا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر اپڈیٹ کریں کہ دادو کے علاقے سمشاق میں 2 گروہوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں فائرنگ سے بہن بھائی قتل جبکہ 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ادھر جیک آباد میں زمین کا تنازع گزشتہ روز 2 برادریوں کے درمیان تصادم میں زخمی ایک اور شخص دم توڑ گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ 5 افراد زخمی جبکہ تصادم دھوات پور میں تہیم اور ببر برادری میں زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ مقتولین کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ واقعے کا ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے۔ شیخوپورہ میں ڈکیتی کی واردات کے دوران دیہاتیوں اور ڈاکوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 ڈاکو مارے گئے۔ ڈاکوں کی فائرنگ سے پولٹری فارم کا مالک شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ ظلم کی انتہا، علی پور میں ایک اور حبا کی بیٹی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ مظفر گڑھ کے موزہ باس والا میں 12 افراد نے گن پوائنٹ پر غریب مزدور کی بیٹی کو اغوا کر کے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں سو رہی تھی کہ اسلحے سے لیس 5 ملزمان چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ملزم اغوا کر کے ناظم نامی شخص کے مکان پر لے گئے، جہاں سب نے باری باری زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم جان سے مارنے اور ویڈیو بھی بناتے رہے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ پولیس تھانہ صدر علی پور کو واقعے کی درخواست دی ہے، اس کے باوجود ایس ایچ او تھانہ صدر علی پور نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے۔ جام شوروں میں بدامنی اور جرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف علاقہ مکینوں نے سپر ہائی وے پر رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاج کیا، جس کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جام شوروں میں چوری، ڈکیتی، راہزنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافے کی وجہ سے علاقہ مکین اپنی رقم اور قیمتی اشیاء سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایس ایچ او جام شورو علاقے کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ پولیس جرائم کی وارداتوں کا مقدمہ درج کرنے تک کو تیار نہیں۔
अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में सरकारी पॉइंट्स पर आटे की अदम फराहमी पर शहरी नाला है एहतजाज करते हुए सड़कों पर आ गए मुजाहिरीन ने कचहरी चौक पर धरना देकर शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुजाहिरीन का इंतजामिया और फ्लोर मिल मालिकान के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहरियों का कहना था कि सुबह से कतारों में खड़े हैं लेकिन आटा नहीं दिया गया। फ्लोर मिल्स के मुलाजिम कतारों में खड़े शहरियों की बजाय सिफारिशियों को आटा फरोख्त करते हैं, जबकि महंगाई के असरात को कम करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की कोशिशें। महकमे फूड की जानिब से डेरा बुगटी में गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी 20 किलो आटे का थैला 1510 रुपये में दिया जा रहा है। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि महंगाई के असरात कम करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से महकमे फूड ने डेरा बुगटी में स्टॉल लगाया जहाँ गरीब आवाम के लिए सस्ते आटे की फराहमी जारी है और 20 किलो आटे का थैला 1510 रुपये में दिया जा रहा है। अब आपको बताएं कि रुझान के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। शहरी बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े आला हुक्काम से महंगाई में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरियों का इस बारे में क्या कहना था, जानेंगे अली असदुल्ला से। हाँ जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह रुझान में भी बढ़ती हुई महंगाई ने जो है गरीबों को जीना दुश्वार कर दिया है। दूसरी जानिब से हुकूमत की जानिब से रोज बरोज जो है अशिया खुर्दनोश के साथ साथ जो है डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ लोगों में जो तशवीश की लहर पाई जा रही है, लोग बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हुकूमत से कितना यहाँ के लोग खुश हैं? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी बताइएगा, हुकूमत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस महंगाई के बारे में आपके क्या कहना है? हुकूमत से तो हमारी खुश है कि ये महंगाई इतनी जो पेट्रोल और डीजल बढ़ा दिया है ना, गरीब के ऊपर तो बम गिरा दिया है इन लोगों ने। गरीब कहाँ पे जाए बेचारा भाई, खाने की अशिया महंगी हो चुकी है और गरीब जो 600 दिहाड़ी कमाने वाला है वो कहाँ पे जाएगा? बच्चों को खिलाएगा, राशन लेगा, लकड़ लेगा, कहाँ से पूरी करेगा भाई? जी बिल्कुल, जैसा कि शहरियों की जानिब से तशरीफ की लहर पाई जा रही है, उनका यही कहना है कि एक मजदूर 600 कमाने वाला उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है ये हुकूमत और आला जो हुक्मरान है उनको मालूम नहीं है। उनका यही कहना है हम पर तर्स किया जाए और जो ये रेट्स हैं अशिया खुर्दनोश की रेट्स हैं इनको कम किया जाए, गरीबों पर जो है कुछ रहम किया जाए ताकि ये भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जो है वो गुजार सके। बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जलालपुर पीरपाला में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया है। महंगाई से परेशान शहरी गाड़ियों के किराए बढ़ने पर अफसरदा हैं। हमारे नुमाइंदे मदनी खान इस वक्त लारी अड्डे पर मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए लीटर के हिसाब से इजाफा किया है, उससे ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें भी बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इस वक्त मैं लारी अड्डा पर मौजूद हूँ। जलालपुर पीरवाला का जो लारी अड्डा है, यहाँ के जो अड्डा मैनेजर हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस इजाफे से हुकूमत क्या मुतालबा करेंगे। जो हमारे ऊपर हुकूमत ने बम गिराया है, साफ सी बात है हमने भी ये किराया आवाम से ही निकालना है। हमें जो गैस पेट्रोल महंगा मिलेगा तो हमने भी किसी ना किसी तरह अपनी कमियों को पूरा करना है। जी बिल्कुल, आपने अड्डा मैनेजर की बात सुनी कि जो भी हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करेगी उसका डायरेक्ट जो है वो आवाम पर ही असर पड़ेगा। इस बसों पर और ये ट्रांसपोर्ट पर जो है दरमियाना तबका लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत जो अपना फैसला इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो किया है उसको वापस ले। बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग और खाम माल की कीमतों में इजाफे के पास 80% लूम फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ है, जबकि हुकूमत को टैक्सेस कीमत में करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से। ये हैदराबाद के इलाके रशीद घाट में 150 से ज़ायद लूम फैक्ट्रियाँ हैं जो कि जो है जिनमें से बेशतर बंद हो चुकी हैं। उसकी बुनियादी वजह एक तो बिजली की लोड शेडिंग है, दूसरा मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, जिसके सबब जो है ना वो यहाँ काम करने वाले सैकड़ों की तादाद में मजदूर जो कि अपने घर का गुजर बसर करते थे वो भूख और बदहाली का शिकार है। मटेरियल जो इसका ज़्यादातर बाहर से आता है वो मटेरियल नहीं मिल पा रहा, इसी वजह से कारखाने भी बंद हो रहे हैं और इसके जो है माल की शार्टेज भी हो रही है। और अगर यही सूरत हाल रही तो यहाँ पर जो है ये कदीमी काम है जो बरसा बरस से कई नस्लों से लोग कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है वो मज़ीद बेरोजगारी में इजाफा होगा। जी और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेरोजगारी, दोनों सूबों से बड़ी तादाद में शहरी रोजगार की तलाश में डेरा गाजी खान का रुख करने लगे हैं। मामला क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर अहमद चौहान से। शिकम की आग लिए फिर रही है दर बदर,
सगे ज़माना है हम क्या हमारी हिजरत क्या। इस बच्चे जैसे सैकड़ों बच्चे हर साल सर्दियों के मौसम में डेरा गाजी खान में आके कहवा बेच के अपने घर वालों का पेट पालते हैं। माली मसाइल का शिकार ये बच्चा जिसने महज एक कमीज़ पहनी हुई है सर्द मौसम का सामना कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि इनके इलाके में बलूचिस्तान में या KPK में सर्दियों में रोज़गार के मौके नहीं होते, मौसम की शिद्दत के बायस वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है। तो बाअमर मजबूरी ये बच्चे अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आके कहवा बेचते हैं या दीगर काम करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी हुकूमत इन पसमानदा इलाकों में भी कोई इंडस्ट्री लगवाए, कोई कारोबार ऐसा करवाए कि इन बच्चों को हर साल अपना घर छोड़ के यहाँ आने की ज़रूरत महसूस ना हो। जी। हुकूमतें बदलती रही लेकिन जलालपुर भटिया में सीवरेज का मसला हल ना हो सका। हालिया बारिश के बाद गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। जाहिद मुनीर की रिपोर्ट। कहीं सीवरेज का गंदा पानी, कहीं कीचड़ के अंबार। मामूली बारिश ने म्यूनिसिपल कमेटी जलालपुर भटिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन कोई भी सियासी जमात शहर के मसाइल हल ना कर पाई। मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज के मसाइल कई साल से जूं के तू। शहर भर की गलियां और बाजार, नदी नालों, मरकजी रोड, झील का मंजर पेश करने लगा। निकासियाब ना होने से गंदा पानी घरों में दाखिल। नन्हे तलबा भी पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। हर पार्टी को हमने कहा है, किसी पार्टी ने भी इस मसले को हल नहीं किया। नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं, उनका मसला बनता है, वो पानी को झाँक कर स्कूल आते हैं। यहाँ पे दफ्तर है, ये पानी निकालते नहीं, यहाँ पे 7 स्कूल है तो हमने यहाँ से जाना होता है, यहाँ पे पानी पानी खड़ा होता है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि नालों की सफाई का निजाम बेहतर करके सीवरेज के दरीना मसले का हल निकाला जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, न्यू न्यूज़, जलालपुर भटिया। इंतजामिया और सूबाई हुकूमत की नाअहली की इंतहा। मोरो दादू पुल गुज़िश्ता कई साल से खस्ता हाली का शिकार है। सिंध हुकूमत की जानिब से कई मरतबा बजट मुख्तस करने के बावजूद भी पुल की तामीर और मरम्मत ना हो सकी। पुल पर से गुजरने वालों की जिंदगियां दाव पर लगी हैं। मज़ीद जाने के मोहम्मद अमीन चौहान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू मोरो पुल पर, जो एशिया की सबसे बड़ी और सिंध की कदीमी पुल मानी जाती है। मगर गुज़िश्ता कई सालों से पुल की तामीर और मरम्मत का काम ना होने की वजह से पुल जो है ज़बू हाली का शिकार हो गई है। हमारी जो बात हुई यहाँ मौजूद इलाका मकीनों से, तो उनका भी यही कहना था कि गुज़िश्ता कई सालों से सिंध हुकूमत की जानिब से टेंडर पास करने के बावजूद भी यहाँ पर किसी किस्म की कोई तामीर और मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। जबकि पुल के ऊपर लगाई गई स्ट्रीट लाइट, बिजली और दीगर जो चीज़ें थी वो भी उखाड़ कर जो है चोरी की गई है। कई साल पहले जो है हुकूमत की जानिब से बड़ी लोड के गाड़ियों का गुजर पर पाबंदी आयद की गई थी, मगर इस वक्त जो है बड़ी गाड़ियों का गुजर जो है वो आम हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि किसी भी वक्त जो है बड़ा हादसा और रोनमा हो सकता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर पुल की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया जाए और मकीनों को जो है सहूलियात मुयसर की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। उबाड़ों में बापटा इंतजामिया की नाअहली इंतहा को पहुंच चुकी है। बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। गली मोहल्लों में जगह जगह तारों के गुच्छे किसी बड़े साने को दावत देने लगे हैं। मज़ीद जानेंगे अब्दुल मजीद शर से। जी नाज़रीन, बिल्कुल उबाड़ों के जो बेशतर गली मोहल्ले हैं वहाँ पर बिजली के जो लटकते हुए तार हैं वो मौत का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि जो ये बिजली के लटकते हुए तार हैं शहरियों के लिए वबाल जान बने हुए हैं। शहरी कई बार जो है वापडा इंतज़ामिया को इस हवाले से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म का कोई तारुक नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया और ये तार जो है ऊपर नहीं किए गए, जिसकी वजह से किसी वक्त भी शहरियों का कहना है कि कोई बड़ा हादसा भी रूनुमा हो सकता है। ये इंसानी कद से काफ़ी नीचे लटकते हुए तार जो है इंतहाई ख़तरनाक जो है उबाड़ो शहर में मनाजिर पेश कर रहे हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से, वापडा के जो बाला ऑफिसरान हैं उनसे मुतालबा किया है कि उबाड़ो शहर में ये जो लटकते हुए तार हैं इनका कोई हल निकाला जाए ताकि जो किसी भी वक्त किसी भी बड़े हादसे से जो है बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, हर शहरी परेशान है। मुल्तान में महंगाई ने साइकिलें भी गरीब आवाम की पहुँच से दूर कर दी हैं। मार्केट में साइकिलों की क्या कीमत है, जानेंगे माजिद क्लासरा से।
गाड़ी और मोटरसाइकिल लेना मुश्किल ही था। पेट्रोल महंगा होने के बायस जो साइकिल हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। साइकिल की अगर बात करें तो साइकिल की पहले कीमत जो है वो 20,000 थी, अब जो उसकी कीमत बढ़कर जो है वो 22 से 24,000 तक जो है वो पहुंच चुकी है, जिसके बायस यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनको काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद है कि उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या समझते हैं, पेट्रोल महंगा हुआ है, यकदम साइकिल के रेट ही बढ़ गए हैं, तो क्या समझते हैं? रेट काफ़ी बढ़ गया हमारे लिए ना, काफ़ी मुश्किल हो गई है साइकिलें यार, तो हम लोग बड़े परेशान हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से ना। तो साइकिलों के रेट पहले कम थे, अब कुछ रेट ज़्यादा बढ़ गया कुछ। जी बिल्कुल, शहरियों का ये भी कहना है कि अब हमारे लिए साइकिल लेना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। साइकिल के अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो टायर ट्यूब की बात करें तो उनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा हुआ है। टायर जो पहले 1200 में अवेलेबल हो जाता था, अब वो जो है वो 2000 तक जो है वो पहुँच चुका है। तो शहरियों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए, ताकि ये जो गरीब आदमी की जो सवारी है साइकिल है, ये आसानी से गरीब आदमी ख़रीद सके। बहुत शुक्रिया आपका। ठट्ठा का डॉक्टर श्याम कुमार गरीब मरीजों के लिए मसीहा बन गया है। सिविल अस्पताल के शोबा इमरजेंसी में 10 लाख रुपए की लागत से स्टरलाइजेशन यूनिट बनवा दिया। यूनिट से कितने मरीज रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं, जानेंगे ताज़ा गुल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल ठट्टा के शोबा इमरजेंसी में, और आपको बताता चलूँ आज भी ऐसे मसीहा हमारे मुल्क में मौजूद है जो इंसानियत का दिल रखते हैं। तो यहाँ डॉक्टर श्याम कुमार की जानिब से अपनी मदद आपके तहत और कुछ दोस्तों के ताउन से यहाँ शोबा इमरजेंसी में जो है स्पेशल स्टरलाइजेशन यूनिट कायम किया गया है। तकरीबन 10 लाख रुपए की लागत इसमें आई है, तो इन्होंने यहाँ कायम किया है और अब हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं होता कि स्टरलाइजेशन चीज़ें कौन सी यूज़ होती हैं, किस तरह से यूज़ करनी चाहिए, या हमारे पास आजकल जो है हेपेटाइटिस बी, सी या HIV जो कॉमन होते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ होती हैं, वो इमरजेंसी पेशेंट आता है, इमरजेंसी में वो पता नहीं चलता किट कौन सी यूज़ होती है। हमने उन किट को सेपरेट किया है, स्प्रेड किया, उनको सेपरेट करके हमने स्टरलाइजेशन मेथड बनाया। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर श्याम कुमार की बात सुनी, उनका यही कहना था कि कुछ दोस्तों की ताउन से, मैनेजमेंट की ताउन से जो हमने ये स्पेशल स्टरलाइजेशन यूनिट पड़े होते हैं, सामान जो उनको दिया जाता है, जो इस्तेमाल करने के बाद वही यहाँ स्टरलाइजेशन की जाती है। जी, राशिदपुर के नवाई इलाके हाजीपुर में समाजी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की बहाली का सिलसिला जारी है। सैलाब मुतासर किसानों की ज़मीनों को दोबारा आबाद करने के लिए खाद की इमदाद दी जा रही है। मज़ीद जानेंगे इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका हाजीपुर के मकाम पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है और किसानों को कुछ सामान दिया जा रहा है। इस वक्त भी समाजी तंजीम के एक ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि आप ये किसानों को आज क्या क्या तकसीम कर रहे हैं? अभी जो हम दे रहे हैं तकरीबन 600 ख़ानदानों को हम दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, जिसके अंदर को बीज दे रहे हैं, उनको जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि उनको पाँव पर खड़ा किया जा सके और वो उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें ना सिर्फ ये सामान दे रहे हैं बल्कि हम उनकी ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। जनाब थैंक यू। जी, जैसे कि इनका ये कहना है कि किसानों को हमने अपने पाँव पर खड़ा करना है, ताकि जो सैलाब मुतासरीन लोग थे, जिनके घर भी डूब चुके थे और उनके ज़मीनें भी डूब चुकी थी और फसलात के हवाले से उनको खासा नुकसान हुआ था, आज उनको खाद देकर और घरेलू छोटा राशन देकर, नॉर्मल उनको बच्चों के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुहैया की गई और मेडिकल की किट्स दी गई हैं, ताकि ये लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकें और माशरे के बेहतरीन शहरी बन सकें। जी, थर पार्कर के सहरा से निकाले जाने वाला कोयला मुल्क की खुशहाली का ज़ामिन है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 15% बिजली की ज़रूरियात पूरी होती है, बल्कि मकामी आबादी को घर के करीब बेहतर रोज़गार के मौके भी मैसर आ रहे हैं। नासिर शेख की रिपोर्ट। रामकोट में ज़ेरे ज़मीन निकलने वाला कोयला मुल्क को रोशन करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। जो हमारे थरपाकर में जो टोटल कोल है वो 175.5 है बिलियन टन। हमारे पास जो ब्लॉक 2 में है वो 2 बिलियन टन है, जिसमें से माइनेबल है 1.5। अभी हम जनरेट कर रहे हैं सिर्फ 1320 मेगावाट। इसको जितना हम ज़्यादा स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से कोल निकाल सकते हैं। इस वक्त थर कोल प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में डाली जा रही है और रफ्ता रफ्ता इसमें इजाफा हो रहा है। थर कोल प्रोजेक्ट में 70% मुकामी आबादी को मुलाजमत के मौके मुयस्सर आए। कोयले से भरे डंपर और ट्रक अब थर की खवातीन चला रही हैं। घर में काम कर रहे थे, कढ़ाई करते थे, सिलाई का काम करते थे, पता भी नहीं था हम ड्राइवरी करेंगे या नहीं। फिर ये बिला
टूकुला, फिर कुछ लड़कियां पहले उठाई गई थी, फिर हमें भी बताया, हम भी चले आए यहाँ पे, फिर हमें ट्रेनिंग हुई। इस प्रोजेक्ट से थर के माशरती जिंदगी में इनकलाब आ गया। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेयो न्यूज़, थरपारकर। मकामी सियासतदान समाजी कारकुन नदीम हारून रशीद खान की जानिब मुस्तहिक और नादार स्पेशल बच्चों में 100 से ज़ायद व्हील चेयर्स और CP वॉकर्स तकसीम किए गए। इस हवाले से भी आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। मकामी सियासतदान समाजी कारकुन नदीम हारून रशीद खान की जानिब से मुस्तहिक और नादार स्पेशल बच्चों में 100 से ज़्यादा व्हील चेयर्स और CP वॉकर्स तकसीम किए गए। मज़ीद जानेंगे शहरोज़ ज़ेब कम्बो की इस रिपोर्ट में। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इस मौके पर नदीम हारून खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले बयान है जब वालिदैन माजूर बच्चों को कंधों पर उठाकर ला रहे थे और वापसी पर व्हील चेयर्स पर बिठाकर खुशी से निढाल नजर आए। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब और मुखय्यर हजरात से पुरजोर मैं उनकी अपील करता हूँ कि वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है ये जो हमारे मुआशरे में स्पेशल चिल्ड्रन है इनकी जो है मदद करें, बट ताकि ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें और किसी पे बोझ ना बने। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था ऐसे बच्चे जो कल जमीन पर रेंग रहे थे आज उनको व्हील चेयर्स पर जाते देखकर खुशी हो रही है। कुछ दिन पहले एक फ्री मेडिकल कैंप किया था जिसमें जिन मुश्किलात से बच्चे गुजर रहे हैं उनको हम सामने लाए थे ताकि मुआशरे में और गवर्नमेंट के सामने भी उनके लिए भी अवेयरनेस आए ताकि वो खुद से इनकी मदद करें। फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चों को हमने कवर किया है और कम्युनिटी रिसोर्सेज से हम फेज़ 1 में अपने बच्चों को व्हील चेयर्स और CP वॉकर्स दे रहे हैं। वालिदैन का कहना था ये काम जो हुकूमत को करना चाहिए था वो कसूर के एक सियासतदान ने करके दिल जीत लिए। शहरोज़ ज़ेब कम्बो, न्यू न्यूज़, कसूर। आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर कई फीट पर पड़ चुके निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासर है। मज़ीद जाने के बाद ये नीलम में मौजूद अपने नुमाइंदे उस्मान तारिक चुगताई से। गुज़िश्ता रात से नीलम वैली में शुरू होने वाला बर्फ़बारी का सिलसिला इस वक्त तक पूरे ज़ोर शोर से जारी है। नीलम वैली में मुतअद्दिद इलाका जात जो हैं उनकी राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। मेन शराय नीलम की अगर बात की जाए तो मुज़फ़्फ़राबाद से 8 मुकाम तक शराय नीलम ट्रैफिक के लिए तो बहाल है, मगर ज़िली इंतज़ामिया और महकमा शरात की जानब से शराय नीलम पर मुसाफरों और सियाहों को सफ़र करने से इजतनाब बरतने की हदायत जारी की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िली हेडक्वार्टर 8 मुकाम में, जहाँ पर बर्फ़बारी की वजह से हर सू इलाके ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इलाके में बर्फ़बारी की वजह से जहाँ सियाह नीलम वैली की तरफ रुख कर रहे हैं तो दूसरी जानब इलाके में मुश्किलात और मसाइल का भी इजाफा हो रहा है। बालाई नीलम वैली के इलाकों समेत ज़ेरी नीलम वैली के इलाकों की मुतअद्दिद राब्ता सड़कें जो हैं वो गुज़श्ता कई दिनों से बंद हैं, जिसकी वजह से इलाके में खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा होती जा रही है। बर्फ़बारी की वजह से ज़िली हेडक्वार्टर समेत पूरी वैली में इस वक्त बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह चुका है। इलाके में इस वक्त मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है। मैं अगर बात करूँ महकमा मौसमियात की जानब से की जाने वाली पेशन गोई के हवाले से तो आज शाम तक बर्फ़बारी का यह सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ट्रकों, मुसाफिर बस और बड़ी गाड़ियों की सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाली फूलों की तैयारी भी इंतहाई मेहनत तलब काम है। नसीराबाद के कारीगरों का मुनासिब मुआवजा न मिलने का शिकवा कहते हैं कि बारीक धागों को सेंच कर खूबसूरत फूल तैयार करते हैं, मगर मुनासिब मुआवजा नहीं मिल पाता। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली से। हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की सकाफत का अहम जुज़ हाथों से तैयार की जाने वाली फूल, जिस पर कारीगर बारीक धागों को परोत कर खूबसूरत दिलफरेब डिजाइन तैयार करते हैं। महंगाई के हालिया लहर ने जहाँ दीगर शोबाजात को ताल्लुक रखने वाले अफराद को मुतासर किया, वही हाथों से दीदा से फूल तैयार करने वाले कारीगर भी मुतासर है। यहाँ पर मेरे साथ कारीगर मौजूद है, से बात करते हैं। सर ये जो फूल हैं तो हम अपने हाथों से बनाते हैं, ये बलूचिस्तान का एक सकाफत है। ये हमारे गाड़ी वाले हैं जो बलूचिस्तान के ड्राइवर हज़रात हैं, ये वो इस्तेमाल करते हैं। सेट शीशा, कोच, गाड़ी, जो भी गाड़ी है 4 व्हीलर उसके लिए। जिस तरह यहाँ पर मौजूद आपने इन कारीगर की बात उनका कहना है कि ये फूल बड़ी गाड़ियों, ट्रकों, 10 व्हीलर, कोच और दीगर जो गाड़ियाँ उनके लिए सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे और रिलीफ फराहम करे। जी
कुदरती हुस्न से मालामाल चीचावतनी की पहचान माल्टों के बागात भी हैं। जाड़े के इस मौसम में इनका फल पककर तैयार हो गया है, जो चीचावतनी के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सप्लाई किया जाता है। इन खट्टे मीठे माल्टों के हवाले से देखते हैं अशफाक अंजुम कादरी की रिपोर्ट। जाड़े ने धूम मचाई तो चीचावतनी के मशहूर बागात का फल माल्टा भी पक कर तैयार हो गया। चीचावतनी का माल्टा जायके में अपना सानी नहीं रखता। काश्तकारों का कहना है उनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत उनके साथ ताउन करे तो पैदावार में मजीद इजाफा हो सकता है। मज़रात नूं चाहिदा है उहदे अच्छियां वैरायटियां सानूं देण, फिर उहदे ते कोई स्प्रेयां खादां वगैरह अच्छियां होण, बीमारियां तो कंट्रोल वास्ते कोई महकमा तो चाहिदा, महकमा ज़राअत नूं गवर्नमेंट नूं भी उपर ना काफ़ी रिलीफ देवे सानूं। पंजाब भर में मशहूर जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर ये माल्टे खाने के लिए शहरी न सिर्फ दोस्तों के हमरा आते हैं बल्कि घर वालों के लिए भी खरीदते हैं। हमें रेट पे अच्छा किन्नू देते हैं। ये आप देखें कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी क्वालिटी है। इसको सुपर यानी कि सुपर भी कहा जा सकता है। यहाँ पर अपनी मर्जी से हम तोड़ते हैं, तोड़ कर घर लेके जाते हैं। बड़ा मज़ेदार और मीठा किन्नू है। चीचावतनी की जमीन जरखेज और पानी मीठा होने से माल्टे की पैदावार खूब होती है। बाग मालिकान का कहना है पैदावार तो अच्छी हुई है, अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे तो न सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। अशफाक अंजुम कादरी, न्यू न्यूज़, चीचावतनी। खबरों में अब तक लेते हैं। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।